Hello, student. We discuss the topic misdirection, reconnaissance, and disruption method. What is reconnaissance? Reconnaissance, also known as information gathering. Uh, this this method is about how to gather information from the victim system. It is classified as active and passive reconnaissance. एक्टिव रिकॉग्निशंस में क्या होता है? इट इंक्लूड इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद द टारगेट। ठीक है, इसमें क्या होता है? डायरेक्टली जो रहता है, डायरेक्टली इन इंटरेक्ट होता है टारगेट से। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द टारगेट में रिकॉर्ड आईपी एड्रेस एंड लॉग एक्टिविटी। हियर here we record the IP address and log activity, and basic reconnaissance make use of the vast amount of information available on the web. When one is conducting passive reconnaissance, one is not interacting directly with the target and such. इसमें directly इसमें जो है directly interact होते हैं target से, but इसमें directly interact नहीं होता है target से passive में। ठीक है, the target has no way of knowing record or logging activity। इसमें किसी भी वे में रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि लॉगिंग एक्टिविटी कहाँ से हुई है, आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, द रिकॉग्निशंस इज एम्ड at collecting as much information as possible on the target. At this point in the penetration test, no details should be overlooked, regardless of how sus it may seem. Okay, while one is gathering information, it is important to keep the data in a center location. ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मिस डायरेक्शन। व्हाट इज मिस डायरेक्शन? व्हेन वी गैदर इंफॉर्मेशन टू misdirect it to anyone. Misdirection play an important role in computer hacking as well. Okay, sometimes the hacker motive are clear, while in other cases hackers are obscuring their motivation on or target or targets. In other situations, the bad guys are using misdirection to control the psychology of their marks. Misdirection has been tactic in battle of centuries as well. From a simple diversion to sophisticated misinformation campaign, misinformation is tried and true approach for fooling and hence besting our opponents. हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम किसी को कोई मैसेज भेज रहे हैं और उसमें हम उसको मनी सेंड करने के लिए बोल रहे हैं, तो अगर हम कितने लोगों को भेजें, उसमें से कोई एक तो होगा जो उस पे बिलीव करेगा उस मैसेज पे। ठीक है, और फंड ट्रांसफर करेगा। ऐसे इस टाइप के ट्रिक्स मिस डायरेक्ट करके जो ट्रिक्स अप्लाई किया जाता है, दैट इज द मिस डायरेक्शन मेथड। ठीक है, इसके बाद मेथड आता है एक डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन इज अ मेथड वेयर साइबर अटैकर्स एंड डिस्ट्रप्शन इज हैजर्ड्स threat arising from intentional or in unintentional incident that cause breach in security, damage to digital device and networks or a network outage। इसमें क्या है? पूरी तरह से सिस्टम को डिस्टर्ब करना, डिस्ट्रॉय करना, सिक्योरिटी डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, कैन बी इट कैन बी डैमेज्ड बाय ह्यूमन एरर, साइबर अटैक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स और फिजिकल डैमेज एज अ सेकेंडरी इम्पैक्ट फ्रॉम अनदर हैजार्ड। ठीक है, इसमें हम देखते हैं इस जो तीन टाइप के मेथड है, इसमें सबसे पहला आता है ये जो तीन टाइप के मेथड है। ठीक है, मिस डायरेक्शन, डिस्ट्रप्शन और रिकॉनाइसेंस। इसमें सबसे पहला आता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, व्हाट इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग? also known as XSS. Okay, cross-site scripting attacks are type of injection in which malicious scripts are injected into otherwise benign and trusted website. क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि ये बेस्ड रहता है HTML पेजेस पे। HTML पेज और स्क्रिप्टिंग इज अ जावा स्क्रिप्टिंग। ठीक है, इस पे क्या करता है अटैकर? आपको सिंपल कोई ब्लॉग या कमेंट लिखना रहेगा। ठीक है, उस पे आप अगर ब्लॉग या कमेंट लिखते हैं तो वो एज ए एलिमेंट, HTML एलिमेंट ही सेंड होता है। ठीक है, फिल्टर अगर वो नहीं हो पाता है तो डायरेक्ट सर्वर पे वो एज ए एलिमेंट आता है
और अगर आपने कुछ भी एंटर किया है तो वो डायरेक्टली वैसा का वैसा अटैकर के पास चला जाता है। ठीक है, इसमें XSS attack occur when an attacker use a web application to send malicious code, generally in the form of browser site script to a different end user. Okay, an attacker can use XSS to send a malicious script to an unsuspecting user. The end user browser has no way to know that script should not be trusted. उसको पता ही नहीं चलता it is trusted or not. ठीक है, एंड विल एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट, और एक बार अगर वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाता है बिकॉज इट थिंक द स्क्रिप्ट केम फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स, क्योंकि हमने जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है वो किसी ऐसे वेबसाइट पे लिखा है जिसको आप हमेशा ओपन करते हैं, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं। द मैलिशियस स्क्रिप्ट कैन एक्सेस एनी कुकीज, सेशन टोकन or other sensitive information written by the browser and used with that site. This script can even rewrite the content of the HTML page. ठीक है, इसमें क्या-क्या सेंड हो सकता है? मान लीजिए आप कुकीज़ तो जानती हैं, सेशन टोकन भी जानते हैं। कुकीज़ और सेशन टोकन क्या है? आप ब्राउज़र पे कुछ सर्च करते हैं और वो एज़ अ कुकीज़ अगर आपके ब्राउज़र पे स्टोर है, तो अगर मान लीजिए आपने लॉगिन किया है ब्राउज़र पे, ठीक है? और आपका लॉगिन कुकीज़ में है, ठीक है? और वो कुकीज़ ही अगर मान लीजिए आपकी किसी वेबसाइट पे अटैकर ने क्या किया है, एक पोस्ट डाला हुआ है, आपने उस पे क्लिक किया, तो आपका एज़ अ कुकीज़ ही सेंड हो गया, ठीक है? तो वो क्या है, उस कुकीज़ को यूज़ कर सकता है आपका जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन है उसको लेने के लिए, और वो लॉगिन कर सकता है बिना आपको पता चले, ठीक है? दिस इज़ डन बाय द क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट scripting attack occur when data enter a web application through an untrusted source, most frequently a web request. A second one is the data is included in dynamic content that is sent to a web user without being validated for malicious content. Okay. The malicious content sent to the web browser often takes the form of a segment of JavaScript, जो मैंने अभी बताया, but may also include HTML, Flash or other type and any other type of code that browser में execute, जो browser execute कर सकता है, HTML execute कर सकता है, Flash के code execute कर सकता है, JavaScript execute कर सकता है, ठीक है? टाइप ऑफ XSS अटैक, देर आर थ्री मेन टाइप ऑफ अटैक, इसमें से दो मेनली है। मेन अटैक जो यूज होता है रिफ्लेक्टेड एक्सेस, रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। इसमें क्या होता है, वेयर द मैलिशियस स्क्रिप्ट, जो भी मैलिशियस स्क्रिप्ट है, जो अटैकर कोड है, कम्स फ्रॉम द करेंट HTTP रिक्वेस्ट, ये कहीं पे स्टोर नहीं होता है, ये वहीं पे रिफ्लेक्ट करता है आपके ब्राउजर पे। अगर एक ब्राउजर पे भेजा है तो एक ब्राउजर पे, दो ब्राउजर पे भेजा है तो दो ब्राउजर पे, ठीक है, थर्ड ब्राउजर पे भेजा है तो थर्ड ब्राउजर पे, ये वहीं पे रिफ्लेक्ट करेगा जिस पे भेजा गया है। स्टोर्ड एक्सेस में क्या होता है, वेयर द मैलिशियस स्क्रिप्ट कम फ्रॉम द वेबसाइट डेटाबेस, ये उस डेटाबेस से रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, स्टोर डेटाबेस से, तो वहां से वो जितने लोग एक्सेस करेंगे वो सबके में चला जाएगा, ठीक है। थर्ड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वेयर द डोम बेस cross site scripting where the vulnerabilities exist in client side code rather than the सर्विस साइड को, ये जस्ट मिलता जुलता है किससे, रिफ्लेक्टेड एक्सेस से, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं स्टोर्ड एक्सेस, तो मैंने आपको समझा दिया है, रिफ्लेक्टेड एक्सेस भी समझा दिया है, ठीक है। अब देखते हैं हाउ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वर्क्स। देयर आर टू स्टेजेस टू टिपिकल एक्सेस अटैक। फर्स्ट है टू रन मैलिशियस जावा स्क्रिप्ट कोड इन विक्टिम ब्राउजर। अगर जो विक्टिम मतलब जो यूजर है उसके ब्राउजर पे जावा स्क्रिप्ट मैलिशियस जिसमें अटैकर का कोड है वो रन हो रहा है, एंड अटैकर मस्ट फर्स्ट फाइंड अ वे टू इंजेक्ट मैलिशियस कोड इनटू अ वेब पेज दैट द विक्टिम विजिट। सबसे पहले तो अटैकर उस मैलिशियस कोड को वहां पे इंजेक्ट करता है जहां पे वो यूजर वेब पेज को सर्च करता है, जिस वेब पेज पे वो सबसे ज्यादा सर्च करता है, ठीक है, वहां पे उसके डेटा पे इंजेक्ट करता है। आफ्टर दैट द विक्टिम विजिट द पेज। अब जो भी यूजर है जिससे हमको डेटा लेना है, जिससे अटैकर को डेटा लेना है, द विक्टिम मस्ट विजिट द वेब पेज विद द मैलिशियस कोड। इफ द अटैक इज डायरेक्ट
at particular victim, the attacker can use social engineering or phishing to send malicious URL। मैं आपको आगे बताऊंगा सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है। ठीक है, ये देखिए, इस इमेज से समझते हैं। ये वेबसाइट है, ठीक है, ये एक वेबसाइट है जिसपे एक स्क्रिप्ट भेजा गया है। इस स्क्रिप्ट में क्या है, डायरेक्ट कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, इसने इस वेब पेज पे एक कोड स्क्रिप्ट किया है। ठीक है, जैसे ये इस पे लॉग इन करता है तो इसका जो डेटा है और सेंसिटिव डेटा, उसका जो इंफॉर्मेशन है वो पूरा इस अटैकर के पास आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो कोड, ये मान लीजिए कोई पेज है, ये वेबसाइट जो है विजिट कर रहा है और इस वेबसाइट पे कोई मान लीजिए कोई कमेंट लिखना है, कोई कमेंट बॉक्स है, वहां पे इन्होंने कमेंट किया और उस कमेंट बॉक्स में इन्होंने क्या किया है कि डायरेक्ट क्या किया है कि एक जावा स्क्रिप्ट या कोई ऐसा स्क्रिप्ट रन हो रहा है जिससे इसका जो डेटा है वो डायरेक्ट इसके पास आ जा रहा है। ठीक है, अब प्रिवेंट कैसे हो सकते हैं इससे? फिल्टर इनपुट ऑन अराइवल। अगर आप इस पे फिल्टर लगा हुआ है, इनपुट पे फिल्टर लगा हुआ होना चाहिए। एक्चुअल पे क्या है, इनपुट पे फिल्टर ज्यादातर जगह पे नहीं लगा होता है। ठीक है, क्या इनपुट जा रहा है, इनपुट पे अगर एचटीटीपी कोड या जावास्क्रिप्ट कोड या फ्लैश कोड अगर जा रहा है तो उसको क्या होता है कि उसको फिल्टर करने से पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ essential information जा सकता है। At the point where user is input is received, filter as strictly as possible based on what is expected or valid input। Encode data on output, encode कर सकते हैं on output पे डेटा को, जो डेटा है उसको encode कर सकते हैं आउटपुट पे। ठीक है, use appropriate response header। ठीक है, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, ये सारी चीजें यूज करके प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके बाद एक टॉपिक आता है सोशल इंजीनियरिंग। व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग? सोशल इंजीनियरिंग इज द टर्म यूज्ड फॉर अ ब्रॉड रेंज ऑफ malicious activities accomplished थ्रू ह्यूमन इंटरेक्शन। सोशल इंजीनियरिंग से एक चीज तो समझ में आ रहा है कि सोशल एक्टिविटीज है। ठीक है, सोशल एक्टिविटीज, अगर देखिए, अगर हमको अटैक करना है किसी पे, ठीक है, अगर अटैकर को किसी पे अटैक करना है, किसी यूजर पे, ठीक है, उसे इसेंशियल इंफॉर्मेशन लेना है, तो सबसे 80% चीजें होती है उससे सोशल इंटरेक्शन क्रिएट करना, और 20% ये होता है उसमें हैकिंग का। ठीक है, अगर आप उससे उसका उसकी सोशल एक्टिविटीज आप जान लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए उनसे आपने फ्रेंडशिप कर ली। ठीक है, दिस फ्रेंडशिप भी ये सोशल इंजीनियरिंग एक्टिविटी में आता है। आपने फ्रेंडशिप की, आपने ये देखा कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। ठीक है, अगर उसको कुछ पसंद है, उसकी डेली एक्टिविटीज आप देख रहे हैं, तो उसको वो चीज के लिए प्रेशराइज कर सकते हैं। अगर उसको किसी चीज की जरूरत है, उसके बदले आप उससे वो काम करवा सकते हैं कि जो आप चाहते हैं। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। इट यूज अ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टू ट्रिक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट यूजेस साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टू ट्रिक यूजर इनटू मेक सिक्योरिटी मिस्टेक और गिविंग अवे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ओके, सोशल इंजीनियरिंग अटैक हैपेंस इन वन और मोर स्टेप। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, सोशल इंजीनियरिंग इज द आर्ट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग ह्यूमन साइकोलॉजी rather than the technical hacking techniques to gain access building system और डेटा। इसमें टेक्निकल हैकिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस पर्सन का जिससे हमको इंफॉर्मेशन लेना है, उसको साइकोलॉजी, वो क्या सोचता है, कैसे करता है, ठीक है, कैसे यूज करता है कोई चीज़ों को, उसकी डेली रूटीन क्या है, ठीक है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद है, ये सारी इंफॉर्मेशन गेन करने के बाद हम उससे उसका सिक्योरिटी उससे आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मूवीज में भी आपने देखा होगा कि अगर किसी के पास पासवर्ड है तो उससे लेने के लिए कई तरह की एक्टिविटीज की जा सकती है। उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ठीक है, वो डेली कहाँ से आना जाना करता है, वो किस में आना जाना करता है, ये सारे इंफॉर्मेशन देख के, ठीक है, उसको क्या पसंद है वो चीज उसको गिफ्ट करके। ठीक है, ये दिस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी, दिस इज अ पार्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, आ, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड अ सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी अ सोशल इंजीनियरिंग माइट कॉल एन एम्प्लॉय एंड पोज as an IT support person, try to trick the employee into
डेवलपिंग हिज पासवर्ड। ठीक है, उसके पासवर्ड को जानने के लिए हमने उसको क्या बोला कि हमने उसको कॉल किया, पर्पज ऑफ आईटी सपोर्ट पर्सन। ठीक है, famous hacker Kevin Mitnick helped popularize the term social engineering in the 90s. Although the idea and many of the techniques have been around as long as there have been scam artists, social engineering techniques has proven to be very successful way of criminal to get inside your organization. Once a social engineering has a trusted employee password, he can simply log in and snoop अराउंड फॉर सेंसिटिव डेटा। एक बार अगर वो आपके मान लीजिए उन्होंने आपका डेटा ले लिया, उसका पासवर्ड ले लिया, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आसानी से घुस सकता है और वहां से सेंसिटिव डेटा आसानी से ले सकता है बिना किसी टेक्निकल हैकिंग ट्रिक के। विद एन एक्सेस कार्ड code into order to physically get inside a facility, the criminal can access data, steal access, and even more harm people. ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, क्रिमिनल विल ऑफन टेक वीक्स अ मंथ गेटिंग टू नो अ प्लेस बिफोर यूर कमिंग इन द डोर ऑफ मेकिंग अ फोन कॉल्स। क्रिमिनल्स अगर उसको कोई बहुत सेंसिटिव डेटा लेना है, ठीक है, बहुत सिक्योरिटी पे है, तो उसको कुछ हफ्ते या महीने लग सकते हैं। ठीक है, आपको जज करने में। ठीक है, आपको जज किया, उसने फोन पे जज किया, ऑफिस गया। देखिए 3 टाइप से हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट और organization chart and researching employee on social networking site like LinkedIn और Facebook। ठीक है, ये वो जैसे कोई क्रिमिनल है वो पूरा प्रिपेयर कर रहा है कि उसको कहाँ कहाँ पे वो उसकी एक्टिविटीज वो दिख सकता है। ठीक है, ऑन द फोन अ सोशल इंजीनियरिंग माइट कॉल एंड प्रिटेंड टू बी फेलो employee or a trusted outside authority such as law information or an auditor in the office. Can you hold the door for me? I don't have my key to access a card. Some activities that can trust to him। ठीक है, ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट्स have made social engineering attack easier to conduct. Today's attacker can go to sites like LinkedIn and find all of the users that work at company and gather plenty of details information that can be used to further attack। ठीक है, क्या करते हैं कि ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट पे जैसे लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, यहाँ पे उसके ऑफिस की, उसकी कंपनी की, उसकी फैमिली की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जिससे वो उसको आसानी से ट्रिक मिल सके कि उसको इंफॉर्मेशन कैसे निकालना है। ठीक है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें फेमस सोशल इंजीनियरिंग अटैक के। ठीक है, कि कब कब हुआ था। ठीक है, प्रिवेंशन कैसे हो सकता है कि आप सोशल अवेयरनेस ट्रेनिंग इज द नंबर ऑफ वन वे टू प्रिवेंट सोशल इंजीनियरिंग अटैक। ठीक है, थैंक यू।